चलो, let's we start with chapter number 5, that principles of inheritance and variations. For the inheritance, we have studied Mendel's law. We have studied the two, means first law and second law of Mendel, and from that we came to know that for the monohybrid cross, the result was 3:1. 75% shows for F2 generation a dominant character, and 25% shows the recessive character. Here, let's we go for the dihybrid cross. In dihybrid cross, we found the result 9:3:3:1. What is this 9? The 9 is the both characters are dominant, means dominant that we have taken for the P generation. Then after for these three, first character is from one parent, means first character is the dominant, second one is the recessive. These three, first character recessive means second dominant. One, both characters are recessive. What does this means? This 9:1 is totally like that of the parents one. P generation, parents. Means this is the F2, but character of the P generation. These are F2, but characters are mixed. Here all the characters are of the P generation. One parent, second parent. This is of the 2. Now look here what happened. This 9:1, 3:3. Actually, this is 9:3:3:1. This 9, this one, both like the parents. This 3 mix. Total 16. Means for 16, it is 100%. So for 1, what? You will get the answer 6.25%. What does it means? It means that total 10. Total 10 are like the P generation. 6.25 means for 1. Here 10 means बोलो क्या होएगा वो 62.50%. चलो यहाँ पे हम देखेंगे तो 6, तो 16 for 100, तो 6 के लिए कितना, तो बोलो वो जो फाइंड करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 16, 3, 8, 4, 50, 2, 25, 2, 12.5. 12.5 into 3, 12 3 is 36, 36 and 0.5 3 time means 37.5. Means here we can say the 37.5 are the mix, 62.5 are the like parents. Total 100%. So look here, we can say the 62.50% are exactly like parents. These are the 37.5% are of mix. In half of them
has the first dominant, means one character of the first, second character of the second. Half of other है the first character of the second and second character of the first. So this was the result of the dihybrid cross. Same dihybrid cross was carried out by the Morgan. Morgan select Drosophila. What is the Drosophila? That Drosophila melanogaster. This is the fruit fly. For this fruit fly, when he carried out dihybrid cross, in this dihybrid cross, he found the result quite different than this one. Not exactly this percentage. What he found, that result was 98.7%. Is exactly like parents. What Mendel found 62.50%, instead of it, he find 98.7%. Let me clear that Morgan carried out two experiments. No, numbers of experiments. But from those two experiments are included in our syllabus. We are discussing first. एग्जैक्टली वही दूसरे के लिए आएगा. जब दूसरे के लिए आएगा तो थोड़ा नंबर चेंज होता है. अगर जो हम ये फर्स्ट समझ लेते तो सेकंड वही के वही रिपीट होता है. कैरेक्टर थोड़े अलग होते हैं वही, और थोड़ा यहाँ परसेंटेज अलग होता है. उसके लिए वी आर नॉट स्टार्टिंग विद द अदर वन. फर्स्ट अभी हम क्या कर देंगे, फर्स्ट को ही लेंगे. पहले एक्सपेरिमेंट को पूरे अच्छे से समझ लेंगे. सो हियर ही फाउंड अ मिक्स 98.7. मीन्स देखो 0.3 रख दूंगा तो 99 ने फिर 1, तो मीन्स 1.3% आर मिक्स. द मेजर क्वेश्चन इज दैट if that Morgan has carried out dihybrid cross, then why these results are differ from that of the dihybrid cross of the Mendel. So one student in the class told me, सर वो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई मीन्स एनिमल पे किया और इन्होंने पाइसम सटाइवम मीन्स पी प्लांट पे किया. ये मेंडल का हैगा. मेंडल सिलेक्ट अ पाइसम सटाइवम, that we know that pea plant. Morgan ने किया Drosophila melanogaster fruit fly. Look, let me clear that either it is an animal or it is a plant. Never that result differ, because animal में भी सेल है, प्लांट में भी सेल है. एनिमल में भी न्यूक्लियस है, प्लांट में भी न्यूक्लियस है. एनिमल में भी क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, इसमें भी क्रोमोसोम है. एनिमल में भी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, प्लांट में भी क्रोमोसोम में डीएनए मेन कंस्टिट्यूट है. एनिमल में भी वो डीएनए के अंदर जीन्स है, प्लांट में भी जीन्स है. एनिमल में मियोसिस होके गैमेट्स फॉर्म होता है, प्लांट्स में भी मियोसिस होके गैमेट्स फॉर्म होता है. ऑल द बिहेवियर, ऑल द थिंग आर द सेम. सो व्हाई दिस डिफर? तो उसका आंसर मॉर्गन ने ही दिया. दैट मॉर्गन एक्सप्लेन दैट कि मेंडल ने जो किया था, मेंडल सिलेक्टेड 2 कैरेक्टर्स. बरोबर समझना. तो मॉर्गन ने भी 2 कैरेक्टर ही सिलेक्ट करे उसके लिए, तो उसको भी डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे. चलो हो गया ये दोनों का सेम. चलो फॉर ईच कैरेक्टर देयर इज अ 1 पेयर ऑफ जीन. तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ जीन्स. ओके, तो बोलो यहाँ भी एवरी कैरेक्टर के लिए 1 पेयर और 2 कैरेक्टर के लिए 2, तो 2 पेयर्स ऑफ जीन्स. ओके, सो व्हाई सब एक सा है तो फिर डिफर क्या है? यस, difference is there. Here whatever genes are selected, these are present on different, means 2 pairs of chromosomes. पहला जो पेयर है वो, पहला जो जीन है पेयर का वो 1 पेयर क्रोमोसोम पे है, और दूसरे कैरेक्टर का जीन है वो दूसरे पेयर क्रोमोसोम पे है. While here क्या होता हैगा? 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम.
ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम. देखो सेल में न्यूक्लियस is this chromosome. Chromosomes are in pair. As we know that in human being 23 pairs are there. तो बोलो क्या हुआ, every pair of the chromosome is number of genes. ये पेयर पे नंबर ऑफ जीन्स. नेक्स्ट आगे के चैप्टर में आएगा. ऑन द फर्स्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम वी हैव 2968 जीन्स, अलग अलग कैरेक्टर के. तो क्या हुआ, मेंडल ने जो कैरेक्टर सिलेक्ट करे थे, तो देखो यहाँ पे वो पी प्लांट के सीड का कलर का जीन्स है, तो उन्होंने जो उसके शेप का जीन किया था राउंड और रिंकल वन, तो दूसरी पेयर पे चला जा रहा था. इसके लिए तो हमने वो मियोसिस मैंने किया था, तो एवरी टाइम ड्रॉ किया ऐसा मियोसिस के टाइम पे कि ये पेयर इधर जाएगी, इधर का इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा, इधर का इधर जाएगा. यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. बट व्हाट इज द डिफरेंट इज देयर कि यहाँ भी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स तो 4 पेयर्स है, बट क्या हुआ यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर का जीन्स यहाँ पे हैगा, तो सेकंड कैरेक्टर का जीन भी यहाँ पे हैगा. Drosophila melanogaster has the 4 pairs of the chromosomes, but here we are not considering the total all the four pairs. We are considering only that one pair, but that one pair is the both the genes. ये नहीं समझना कि इसके ऊपर खाली इतने 2 ही जीन है, इसके ऊपर डिफरेंट बहुत से जीन है. बट हमारा एक्सपेरिमेंट जो है अभी कॉन्सेंट्रेट ये 2 पे हो रहा है. तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा था कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर. तो लो कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल आर भी आता है, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर भी आता है. बोलो यहाँ पे अगर जो यही सिंबल ले कैपिटल आर नहीं, ये यहाँ सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. बोलो यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई. बोलो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर. तो बोलो जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर साथ में ही रहेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर भी साथ में रहेगा. बोलो यहाँ पे अगर जो यही चीज हम यहाँ पे 2 पेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैंगे, तो बोलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर. तो बोलो यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर. यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर. बट बोलो अरेंजमेंट चेंज हो गई तो बोलो क्या होगा, यहाँ से जो गैमेट बनेगा दैट विल बी कैपिटल वाई स्मॉल आर. हियर व्हाट स्मॉल वाई कैपिटल आर. बट बोलो यहाँ पे व्हाट विल बी हैपन, कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल आर का गैमेट बनेगा. हियर दैट गैमेट विल बी स्मॉल वाई विद द स्मॉल आर. हियर दैट पॉसिबिलिटी कैपिटल एंड स्मॉल इज नॉट पॉसिबल, स्मॉल एंड कैपिटल पॉसिबल नहीं है. मीन्स क्या होगा, जो पेयर एक बार हुई वो जो पेयर में वो उसकी अरेंजमेंट, इसको लिंकेज कहते हैं, एक दूसरे के साथ में लिंक है, वो लिंक जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रहेगी. मीन्स बोलो पेरेंट्स में जो भी कंस्टिट्यूट है उसके कैरेक्टर है, वो पेरेंट्स के ही कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन साथ में रहेंगे. वो मिक्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेंडल को मिक्सिंग बहुत इजीली मिला. क्यों कि वॉट एवर जीन्स दे ही हैड सिलेक्टेड मीन्स फैक्टर्स, उसने वो फैक्टर बोलते थे, तो वो अलग अलग क्रोमोसोम पे थे. वो उनका रिजल्ट ऑलवेज याद रखना 9331. अगर जो ये 9331 के जो परसेंटेज 62 37.5 उससे वो कुछ अलग आता है, तो समझ लेना का कि जो भी कैरेक्टर सिलेक्ट करे दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम पेयर ऑफ द क्रोमोसोम. बोलो सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम आया तो बोलो क्या हुआ, मिक्सिंग की पॉसिबिलिटीज नहीं है. कैपिटल वाई कैपिटल आर गैमेट साथ में रहेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर साथ में रहेगा. ये कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल आर पॉसिबल ही नहीं है. मीन्स दैट परसेंटेज लाइक पेरेंट्स इंक्रीज. चलो इंक्रीज हो गया तो यहाँ से नेचुरल इक्वेशन आता है, तो फिर सर 100% एग्जैक्ट लाइक पेरेंट्स आने चाहिए, मिक्स आना ही नहीं चाहिए. इसलिए आएगा 11 का चैप्टर नंबर मियोसिस, चैप्टर नंबर 8 सेल डिवीजन मियोसिस याद करो. व्हाट वाज देयर वाज द व्हेन द मियोसिस टेक प्लेस इन द प्रोफेज 1
लेप्टोटीन, जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, पैकिटीन डिप्लोटीन में ऐसा क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है तो बोलो ये कैपिटल आर ये साइड पे जाएगा और ये स्मॉल आर ये साइड पे आएगा, बट चांसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लेस। जितना वो अरेंजमेंट जीन्स का लूज होगा ई मीन्स उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, चांसेस ज्यादा है ऐसा क्रॉस होने का और एक्सचेंज होने का, बट करीब करीब में होगा, नजीक नजीक में से। सो व्हाट विल बी हैपन, इट इज द चांसेस ऑफ एक्सचेंज इज वेरी लेस। तो वो क्रॉसिंग ओवर के लिए थोड़ा बहुत मिक्स मिला। दिस दोस genes which are present on the same chromosome दो आर कॉल्ड एज द लिंकेज। समझ में आता है? तो ये लिंकेज हुआ यहाँ पे। तो ये यहाँ से हमको दो चीज याद रखनी है। इफ फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस एनीबडी इज गेटिंग द रिजल्ट 9331 means 62.50% and 37.50% mix, 62.50% like parents means genes which are selected for the study, those are present on the different chromosome, but इससे कुछ अलग हुआ तो बोलो क्या याद रखने का, उसमें नहीं याद रखने का, फिर कितना भी अलग हुआ। यहाँ पे आते दो अलग अलग एग्जाम्पल, अभी हम फर्स्ट इससे थोड़ा भी अलग हुआ 0.01% भी अलग हुआ, सो व्हाट विल बी द आंसर, द सिलेक्टेड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। समझ में आता है? तो इसको इन्हें बोलेंगे क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। तो देखो ये लिंकेज, ये पूरा अभी हमको इतने बेस के ऊपर से समझना हैगा। जब भी स्टडी करो तो इसको इन्हें क्या करने का, इतना अभी तक का पोस्ट करने का और 2-3 बार उसको बरोबर अच्छे से स्टडी कर लेने का। फिर अभी का हम ये इसका एक्सपेरिमेंट अब हम स्टार्ट करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, उसके लिए डायरेक्ट बुक्स के वर्ड से ही हम स्टार्ट करेंगे। बुक के वर्ड से हम भी अलग नहीं जाएंगे इसमें। Look on the page number 83. Look, page number 83. Topic 5.3.3. लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज यानी एक साथ में ही रहना, रिकॉम्बिनेशन तो अभी अपने बोला था, बोलो क्या होता है, क्रॉसिंग हो ओवर होके जो मिक्स होता है, रिकॉम्बिनेट फिर से उसका मिक्सिंग होना। लुक हियर, बरोबर ध्यान से समझना। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study the genes that are sex linked. एक्चुअल में वो क्या स्टडी कर रहे थे, वो जीन्स फाइंड कर रहे थे कि जो जीन्स सेक्स के साथ में एसोसिएटेड है। मीन्स इन ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर he found that there are the 4 pairs of the genes. In male he found 2, 1, 2, 3 pair. These are not eggs, these are the chromosomes. ऐसे उसको इसका सेंट्रोमियर भी मैंने ड्रॉ कर दिया। In male he found 1 X chromosome and second 1 Y chromosome ऐसा। In female, ये मेल में उन्होंने देखा, फीमेल में क्या देखा, तो वो भी 3 pairs of chromosome, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर सेम है, बट फोर्थ पेयर में क्या आएगा, फोर्थ पेयर में XX है। तो देखो वो XX एंड XY का बिहेवियर समझ रहे थे। अब इसमें क्या हुआ, मेल के अंदर एक्स्ट्रा क्या आएगा, मेल के अंदर एक्स्ट्रा Y हैगा, फीमेल मेल में जो फीमेल में नहीं है, और मेल एंड फीमेल दोनों में क्या है, कॉमन क्या आएगा, तो वो कॉमन हैगा X। As well as he found that this X chromosome is associated with the sex determination, sex final करने के लिए तो है, as well as is also has some autosomal genes. Autosomal genes means कौन से जीन, जो सेक्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है। वो जो टोटल 4 पेयर में से 3 पेयर तो ऑटोजोमल है, वो तो दोनों मेल एंड फीमेल में कॉमन है। उनकी विंग्स, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनका हर सिस्टम, these all are which are the common in either it is a male or female, they are present on chromosome pair number 1, 2nd and 3rd, first, second and third.
वाइल व्हेन वी कंसीडर मेल एंड फीमेल, तो मेल के अंदर एक्स वाई है, फीमेल में एक्स एक्स है, मीन्स एक्स्ट्रा वाई है वो वाई मेल में, उसको मेल के कैरेक्टर स्पेशलाइज कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो चलो उसको हम जाने देते हैंगे। तो बोलो अब मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन क्या हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स फीमेल के लिए तो है ही, दोनों एक्स होते तो फीमेल, बट एक्स मेल में भी है, तो उस पे से उन्होंने कंक्लूड किया कि ये एक्स के अंदर फीमेल के तो रहेंगे, बट दोनों एक्स आएंगे तो ही फीमेल बनेगा, एक एक्स आएगा तो वो फीमेल नहीं बनेगा, तो फिर मेल के अंदर एक्स क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द मेल आल्सो पजेस द एक्स। अगर जो दोनों एक्स आए तो फीमेल बनेगा, तो चलो ठीक बात है, यहाँ पे नहीं आता तो भी चलता। तो आंसर वो अपने मिला कि इसके अंदर थोड़े जनरल बॉडी कैरेक्टर भी है, तो बोलो यहाँ पे भी बॉडी कैरेक्टर है, तो बोलो वो जनरल बॉडी कैरेक्टर के जीन्स भी है, और दोनों एक से तो वो फीमेल भी बनेगा। यहाँ पे दोनों जनरल बॉडी कैरेक्टर भी है, बट दूसरा एक्स नहीं है वाई है, तो वो मेल बनेगा। ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बोला है, जो कि इसको डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे, बरोबर ध्यान से समझ लो इसको, बोलो समझ में आता है। तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जनरल बॉडी कैरेक्टर भी हैंगे, तो उन्होंने ये इजीली स्टडी ये जो कर लिया, और वो एक्स का जो बिहेवियर फाइंड हुआ कि उसमें बॉडी कैरेक्टर के जीन भी है, तो वो ऑटोसोमल जीन्स का भी उन्होंने स्टडी किया, और उस पे से ये आंसर उनको मिला। देखो हमको जो 98.7% पेरेंट्स जैसा मिला और बाकी का मिक्स मिला, वो अभी हम देखते क्या हुआ। The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by the Mendel in peas. Pea plant यानी Pisum sativum. For example, Morgan hybridized the yellow body white-eyed female. बरोबर समझना, फीमेल पी जनरेशन, बोलो क्या आएगा, येलो बॉडी कलर एंड वाइट आईज, बोलो ये फीमेल है। अब भी तुमको बोला था फीमेल में दोनों एक्स रहते तो ये एक्स, क्रोमोसोम है तो ये राउंड रो करने का, येलो का कैपिटल वाई, व्हाइट आइज का कैपिटल डब्ल्यू, दोनों एक ही पेयर क्रोमोसोम पे है। येलो बॉडी व्हाइट आइज, याद रहेगा ना अब इतना। चलो देखो, रेड एंड वाइल्ड आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज मेल, तो बोलो मेल, मेल में क्या रहेगा, तो मेल में अभी अपने बोला था एक तो एक्स रहेगा, तो बोलो वो एक्स पे उसके बॉडी का हैगा, तो बोलो बॉडी कलर कौन सा है, कौन सा है, ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज, तो बोलो ये ब्राउन बॉडी के लिए वाई डेस, रेड आइज के लिए डब्ल्यू डेस, वाई 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 डब्ल्यू, तो ये हो गया ये चेंज, बॉडी कलर बॉडी कलर बॉडी कलर येलो, बॉडी कलर ब्राउन, बोलो हो गया इतना। आइज वाइट, तो यहां भी आइज का ही है, बट उसका अपीयरेंस अलग है, कौन सा आएगा, रेड आइज, कैरेक्टर वही रहा आई कलर, बट हियर आई कलर इज व्हाइट, हियर आई कलर इज रेड, कैरेक्टर वही रहा, बोलो कौन सा आया उसमें कैरेक्टर में, कौन सा अपीयरेंस आया, तो बोलो येलो बॉडी कलर, तो यहाँ कौन सा आया, ब्राउन बॉडी कलर। चलो दूसरा इसके साथ में ये मेल है, तो मेल है तो बोलो इसमें दूसरा क्रोमोसोम वाई है, हो गया इतना। चलो के बीच में क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के लिए तो बोलो क्या होता है, मैंने ऑलवेज यहाँ पे जब भी क्रॉस करने का है तो तुमको सिखाया कि मियोसिस होगा, बोलो मियोसिस होगा, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ, ये वाई डब्ल्यू वाला एक, दूसरा वाई डब्ल्यू वाला, तो ये एक बनेगा वो वाई डब्ल्यू, ये भी वाई डब्ल्यू, बोलो समझ में आता ही नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम हैगा, तो बोलो इधर का जो एक है और इधर का एक है, दोनों एक वाई डब्ल्यू सेम बनेंगे, मीन्स हम इसको एक ही बोलेंगे, क्योंकि किसी के साथ भी फर्टिलाइजेशन होगा वो एक वाई डब्ल्यू लेकर ही आएगा,
तो look, this is the YW egg. And don't be under impression that only 2 eggs are formed. Thousands of cells undergo this meiosis. Means thousands of eggs are formed. All eggs are of the YW, means yellow color and white eyes. चलो यहाँ से स्पर्म जो फॉर्म होगा, बोलो वो एक के साथ में ये फीमेल में से एग आया, तो यहाँ पे बोलो स्पर्म आएगा। स्पर्म के लिए सोचो यहाँ पे भी मियोसिस हुआ, तो ये क्रोमोसोम YW है और ये क्रोमोसोम Y है। ये जीन्स YW बोलता हूँ और ये क्रोमोसोम बोलता हूँ। तो बोलो यहाँ से 2 टाइप क्रोमोसोम बनेंगे। सम आर हैविंग द X chromosome with the Y days and W days, and some of them have the chromosome Y. मीन्स क्रोमोसोम 2 टाइप्स के बनते हैं। एग्स सॉरी क्रोमोसोम नहीं, स्पर्म्स दो टाइप के बनते हैं, 2 टाइप्स, वाई डेस एंड डब्ल्यू वाला एक्स, और दूसरा स्पर्म बनता है वाई वाला, जिसके ऊपर वाई डेस के वाई के डब्ल्यू डेस डब्ल्यू नहीं है। सो लुक हियर व्हाट हैपन, ये स्पर्म ये एक के साथ में फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ये स्पर्म इसके साथ में फर्टिलाइज कर सकता है। वंस अगेन सेम क्वेश्चन कि सर एक ही एक कैसे दोनों के साथ में फर्टिलाइज करता है? अरे बाप रे, कितनी बार सबको समझाया, ऐसे नंबर्स ऑफ एक है तो ये इसके साथ करेगा कि इसके साथ करेगा, एक ही है ना। तो बोलो यहां से ये स्पर्म इसके साथ में जो फर्टिलाइज करेगा, तो बोलो वो फर्टिलाइज करेगा तो उसके जो जनरेशन आएगा तो F1 जनरेशन। बोलो ये स्पर्म ये एग, तो पहले एग हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बोलो एग कौन सा आया? तो YW आया। बोलो कौन सा आया? YW। स्पर्म कौन सा आया? YW। Y dash W dash, सॉरी Y dash नॉट W बट W dash। चलो यहां से ये अपने दोनों का देखिए, तो बोलो एक कौन सा आया? एक कौन सा आता हैगा? बोलो एक आता है, वो एक कौन सा आया? तो बोलो वो एक आया, बोलो कौन सा? YW। बोलो स्पर्म कौन सा आया? स्पर्म Y क्रोमोसोम। बोलो स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम आया, तो बोलो Y क्रोमोसोम पे कुछ नहीं है। बोलो क्या हुआ इसमें से? बोलो आगे अपने बोलो, तो बोलो इसमें ने क्या आएगा? बोलो ये पूरा जो F1 जनरेशन बना, तो बोलो ये F1 जनरेशन में क्या हुआ? बोलो जल्दी से बोलो। ये F1 जनरेशन में फीमेल बनी, तो बोलो ये जो फीमेल बनी उसमें Y एंड YW, Y एंड Y डेस, W एंड W डेस। तो बोलो इसमें कौन सा डेवलपमेंट हुआ? ब्राउन बॉडी कलर एंड रेड आईज। बोलो YW। बोलो ये YW पे यहाँ पे बोलो जो डेवलपमेंट हुआ, ये तो Y के साथ में है, Y है तो बोलो ये मेल बना, बट Y के साथ में Y डेस नहीं है, तो बोलो इसमें येलो कलर, और W है तो बोलो W डेस नहीं है तो व्हाइट आइज। कितने बोलते सर F1 में यहाँ पे P जनरेशन में फीमेल येलो व्हाइट थी तो F1 में मेल हो जाएगा, और यहाँ पे मेल ब्राउन रेड था तो ये अपने हो जाएगा। ऐसा गोला मेथड से याद रखना है तो याद रख सकते, बट एक्चुअल में वो नहीं है। तुमको ये स्पर्म और एग पे से समझ में आना चाहिए। चलो अब अपने क्या करने का? F1 को फर्टिलाइजेशन F1। तो देखो प्लांट में तो जो फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था, यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग है। सो व्हाट विल बी हैपन, इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ में होगा, उसके लिए वी आर टेकिंग बोथ द F1। नाउ लुक व्हाट हैपन हियर इन F1। बोलो F1 हम यहाँ से हम गैमेट फॉर्मेशन लेंगे। समझना ये F1 फीमेल, बोलो F1 फीमेल है, बोलो F1 फीमेल क्या आएगा? तो F1 फीमेल है YW X क्रोमोसोम, and other one is a वो भी X क्रोमोसोम है, बट जीन्स आर द Y dash W dash। बोलो
क्या होगा? तो तुमको अब अपने सेल डिवीजन में इंटरफेस से हम स्टार्ट करते हैं। बोलो सेल साइकिल इंटरफेस। बोलो ये वाई डब्ल्यू क्रोमोसोम है, ये वाई डेज डब्ल्यू है। बोलो क्या होता है इंटरफेस? G1 नॉर्मल ग्रोथ, एस एस में ये रेप्लिकेट होता हैगा। तो ये रेप्लिकेट हुआ तो बोलो अब ये थोड़ा वापस में ड्रॉ करता हूं। ऐसा वाई डब्ल्यू ये क्रोमोसोम था, ये वाई डेज डब्ल्यू डेज था। एस में रेप्लिकेट हुआ तो बोलो ये वाई डब्ल्यू रेप्लिकेट हुआ। बोलो यहां से बोलो रेप्लिकेशन हुआ वाई डेज डब्ल्यू डेज। हो गया, डबल हो गया सब जीन्स, क्रोमोसोम डबल हो गए एस फेस। G2 तो इसके साथ में ही एसोसिएटेड है। चलो अब क्या हुआ? मियोसिस, फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेज वन लेप्टोटेन, जाइगोटिन। चलो जाइगोटिन में पेयरिंग हुआ, पैकेटिंग। तो बोलो पैकेटिन आते ये वाई डब्ल्यू था, वाई डब्ल्यू जो डबल हुआ था वो है ये वाई डेज डब्ल्यू डेज। तो बोलो पैकेटिन में एक ने दूसरे के साथ में यहाँ पे आके ये वाई डेज डब्ल्यू डेज, वाई डेज डब्ल्यू डेज। यहाँ पे बड़ी सारी फिगर ड्रॉ करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। बोलो ये फर्स्ट क्रोमोसोम कौन सा था? वाई डब्ल्यू। ये कौन सा था? वाई डब्ल्यू। बोलो सेकंड क्रोमोसोम जो उसके पैर वाला था वो बोलो कौन सा था? वाई डेज डब्ल्यू डेज। बोलो क्या हुआ? बोलो क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर तो बोलो ये वाई डेज आ गया और यहाँ पे बोलो कौन सा आ गया? डब्ल्यू डेज आ गया। तो ये यहाँ से एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होएगा तो चेंज हो गया इसके साथ में। बोलो चेंज हुआ तो बोलो यहाँ से क्या आपने बनेगा? एक बनेगा वाई डब्ल्यू, दूसरा बनेगा ये वाई के साथ में बोलो ये जो वाई डेज आ गया इसके साथ, तो वाई डेज के साथ में बोलो कौन आएगा? डब्ल्यू। यहाँ पे बोलो दूसरा जो नीचे का है उसमें हमने बोलो क्या आएगा? तो उसमें आएगा बोलो वाई, वाई के साथ में डब्ल्यू डेज, तो यहाँ पे आएगा वाई डेज डब्ल्यू। समझ में आया? ये दोनों के बीच में अंदर के क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज हुआ तो ये वाई और वाई डेज के बीच में हुआ होगा। तो जहाँ वाई वाला है वहां पे वाई डेज डब्ल्यू, वाई डेज आ गया यानी डब्ल्यू तो ऐसा ही अपने रहा। और जहां पे डब्ल्यू डेज एक्सचेंज हुआ तो वाई के साथ में डब्ल्यू डेज आ गया और ये साइड वाला है वो तो वही रहा। तो बोलो क्या आया? वाई डेज डब्ल्यू डेज। तो बोलो यहां से जो ये क्रॉसिंग ओवर होने से लिंकेज के अंदर जो एग्स बनेंगे वो 4 टाइप बनेंगे। बोलो कौन से बनेंगे? तो एक तो वाई डब्ल्यू बनेगा, दूसरा वाई डेज डब्ल्यू डेज बनेगा, बोलो तीसरा कौन सा बनेगा? क्रॉसिंग ओवर होने से ये वाई के साथ में डब्ल्यू डेज आया वो ने। फोर्थ वन कौन सा बनेगा? तो फोर्थ वन बनेगा बोलो कौन सा बनेगा? तो वाई डेज के साथ में डब्ल्यू आया वो। मीन्स देखो ये 4 टाइप ऑफ एग्स बनते हैं। ये एग्स है। चलो स्पर्म को हम करेंगे तो स्पर्म में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा बिकॉज होमोजाइगस क्रोमोसोम के बीच में होता हैगा। यहाँ तो एक एक्स टाइप है ना दूसरा वाई टाइप है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो बोलो यहाँ स्पर्म 2 टाइप के ही बनेंगे। बोलो सम हाफ ऑफ द 50% ऑफ द स्पर्म हैविंग द एक्स क्रोमोसोम वाई डब्ल्यू एंड 50% ऑफ द स्पर्म्स आर हैविंग द क्रोमोसोम वाई। तो बोलो क्या होगा? ये एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है जिसके पास वाई डब्ल्यू है वो इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन करेगा, वो इसके साथ भी कर सकता है, वो इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। वंस अगेन सेम कि सर सिंगल क्रोमोसोम सब एक्स के साथ में कैसे फर्टिलाइज करेगा? अरे दीज आर थाउजेंड्स ऑफ द स्पर्म्स आर फॉर्म लाइक दिस वन एंड थाउजेंड्स ऑफ दिस वन। ये इसके साथ करेगा, ऐसा स्पर्म इसके साथ भी करेगा, इसका स्पर्म इसके साथ भी करेगा, ऐसा स्पर्म इसके साथ भी करेगा। तो F1 का F1 के साथ में करा तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे बोलो ये वाई वाला है तो ये वाई क्रोमोसोम वाला है इसके साथ भी कर सकता है इसके साथ। तो पहले हम ये वाई वाले को ले लेते। बोलो क्या आएगा? पहले हम इसके साथ में ले लेवे। बुक को थोड़ा फॉलो कर दे फिर बुक के अंदर भी ये फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वंस यू विल अंडरस्टैंड दिस देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन बुक। तो बोलो यहां से एक्स क्रोमोसोम कौन सा आया? एक्स क्रोमोसोम आया बोलो कौन सा आया? वाई डेज डब्ल्यू डेज। स्पर्म वाला कौन सा आया? स्पर्म वाला आया वाई।
हो गया ये। चलो फिर ये इसके ने साथ में बता दे, ओरिजिनल पी जनरेशन है उसके ने साथ का पहले हम ड्रॉ कर देते। तो बोलो क्या आया, एक कौन सा आया, वाई डब्ल्यू, हुआ इतना। चलो बोलो यहां से बोलो स्पम कौन सा आया, वाई डब्ल्यू, और सॉरी स्पम कौन सा आया, वाई, और ये वाई का बोलो ये दोनों के साथ में, तो अब ये म्यूटेंट के साथ में लेंगे, इसके ने साथ में क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसके साथ, तो बोलो कौन सा आया, वाई डब्ल्यू डेस, और ये वाई क्रोमोसोम। चलो इसके ने साथ में लेंगे तो बोलो एक कौन सा आया, वाई डेस डब्ल्यू, एंड स्पर्म आया एक्स। तो बोलो यहां से ये 4 बने, बोलो ये 4 मेल आएंगे, मेल में वाई डेस डब्ल्यू डेस मीन्स ब्राउन एंड रेड। चलो वाई डब्ल्यू येलो एंड व्हाइट, यानी ये दोनों पेरेंट जैसे। बोलो मेल में वाई डब्ल्यू डेस, वाई इसका और डब्ल्यू डेस इसका, मीन्स ओनली येलो कलर इजीली डेवलप्ड। चलो वाई डेस डब्ल्यू, बोलो वाई डेस डब्ल्यू मीन्स वाई डेस यहां से आया, डब्ल्यू यहां से आया, तो व्हाइट आईज। एक कैरेक्टर एक का दूसरा कैरेक्टर दूसरा, एक कैरेक्टर एक का दूसरा कैरेक्टर दूसरे पेरेंट्स का, और यहाँ पे दोनों इतने। फीमेल भी ऐसे ही बनेंगे, ये सब में लेंगे। बोलो फीमेल में हम देखेंगे तो बोलो अब स्पर्म ये एक्स वाला लेने का, इसमें भी पहले हम इसके साथ में ले लेंगे, तो बोलो एक जो आया, बोलो एक कौन सा आया, वाई डब्ल्यू, नहीं पहले कौन सा लिया, डेस वाला, हाँ तो ये पहले स्पर्म इसके साथ ले लेवे। बोलो एक कौन सा, वाई डब्ल्यू मीन्स वाई डेस डब्ल्यू डेस, स्पर्म तो फिक्स है वाई डब्ल्यू, मीन्स दोनों एक्स हो गए, मीन्स ये फीमेल बना। बोलो इसमें वाई दोनों एक्स है, बट एक एक्स क्या लेके आया, वाई डेस डब्ल्यू डेस, दूसरा एक्स क्या लेके आया, वाई डब्ल्यू। चलो ये जो स्पर्म है ये स्पर्म अब इसके साथ में लेते हैं, तो बोलो एक एक्स ही लेकर आया, बट वो एक्स के ऊपर बोलो कौन सा क्रोमोसोम कौन से जीन आए, तो वाई डब्ल्यू आए, वाई डब्ल्यू ने। दूसरा एक जो स्पर्म में से आया, वो स्पर्म में से जो आया वो क्या लेकर आया, वाई डब्ल्यू। ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ। चलो यहां से अब ये वाई डब्ल्यू इसके साथ में जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो बोलो एक कौन सा आया, वाई डब्ल्यू डेस, वाई डब्ल्यू डेस ने। बोलो स्पर्म कौन सा आया, वाई डब्ल्यू। बोलो ये स्पर्म और ये एक, तो बोलो एक कौन सा आया, एक्स तो लेकर आया, बट वो एक्स के ऊपर कौन सा ऑटोसोमल जीन्स है, बोलो कौन से होंगे, वाई डेस डब्ल्यू ने। स्पर्म तो कौन सा आ रहा है, वाई डब्ल्यू। बोलो ये कौन से बने, फीमेल बने। देखो तुम देख सकते हो टोटल 8 टाइप्स बनेंगे, उसमें से 4 मेल 4 फीमेल, 4 ऑफ दोस मेल मीन्स टोटल 8 में से 4 मेल में से 2 मेल एग्जैक्टली किसके जैसे रहेंगे, पेरेंट जैसे, येलो व्हाइट, येलो व्हाइट। देखो वाई डब्ल्यू, वाई डेस डब्ल्यू डेस, ये ब्राउन रेड। यहां से भी देखो जो फीमेल बनेंगे वो फीमेल में भी आउट ऑफ 4 में से बोलो 2 किसके जैसे, पेरेंट जैसे, जिसमें से 1 बोलो वाई डेस डब्ल्यू डेस, दूसरा कौन सा, वाई डब्ल्यू। यहाँ पे वाई डेस डब्ल्यू डेस के वाई डब्ल्यू है, तो यहाँ पे वाई डेस वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, मीन्स वाई डेस डब्ल्यू डेस। मीन्स टोटल 8 में से 2 मेल एंड 2 फीमेल आर लाइक दैट ऑफ द पेरेंट।
ने बाकी के 8 में से 2 मेल एंड 2 फीमेल, यहाँ से रिप्रेजेंट ऐसा होता है कि वो मिक्स होएगा, तो हमको 50-50% है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। ये जो मिला जो पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करता है वो कितना है 98.7%। तो देखो आगे समझने के पहले ये फिगर समझनी पड़ेगी। फिगर समझने के लिए पेज नंबर 84 पे आओ। पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 क्रॉस ए, उसको इन्हें लिखा है क्रॉस ए फर्स्ट, बिकॉज दूसरा भी इसके ने जैसा ही क्रॉस हैगा, बट वो क्रॉस हम बाद में अभी हम देखेंगे। ये क्रॉस है, बोलो क्या आएगा? येलो व्हाइट, पेरेंटल येलो व्हाइट। बोलो वाई, वाई वाला है उसको ब्राउन रेड नहीं लिखाएगा, उसको लिखा है वाइल्ड, अलग हो गया वाइल्ड टाइप। ये मेल है, ये फीमेल है। बोलो ये मेल, ये मेल यहाँ पे, फीमेल यहाँ पे। उन्होंने ऊपर अपने सिंबल लिखा है, मैंने साइड पे लिखा है। चलो F1 जनरेशन समझ में आना चाहिए। यहाँ से स्पर्म ये कोई भी एक के साथ में फर्टिलाइज करेगा और ये स्पर्म इसके साथ में। तो लो F1 जनरेशन में बोलो ये फीमेल जो बनती है वो फीमेल बोलो कौन सी हैगी? तो वो फीमेल है, बोलो कौन सी है? वाई डेज W डेज है, मीन्स उसको नहीं लिखेंगे वाइल्ड। और बोलो जो मेल मेल बना वो येलो व्हाइट, फिगर में दिया है बुक में। चलो उसके उसके अंदर से ये उसका F1 का जो हुआ उसमें क्रॉसिंग हुआ, तो लो क्रॉसिंग हुआ तो वाई डेज W डेज, वाई W। तो बोलो ये मेल मेल जो है उसमें वाई डेज W डेज है, तो बोलो ये वाई डेज W डेज है, तो बोलो ये जो बनेगा वो कौन सा टाइप बनेगा? वाइल्ड बनेगा। बोलो उसके नीचे वाई W और येलो, तो ये जो है तो बोलो वाई के लिए येलो ने W के लिए व्हाइट, मीन्स येलो व्हाइट। समझ में आता है? बोलो इधर वो अलग अलग वो मिक्सिंग क्रॉसिंग ओवर वाले एक से हुआ, तो बोलो क्या हुआ? वाई W डेस एन वाई, ये वाई W डेस एन वाई। और यहाँ पे दूसरा है वाई डेस W, तो वाई डेस W ये जो मैंने उसका उन्होंने ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है, मेरा ऊपर नीचे हो गया है। तो बोलो वाई डेस W, बोलो ये जो बना, तो बोलो इसमें ओनली येलो कलर आया, इसमें व्हाइट आया, टोटली वो वाइल्ड बनता नहीं है, मिक्स बनता है। ऐसे ही बोलो फीमेल, एक फीमेल जो बना, फीमेल कब बनेगा? मेल में से एक्स स्पर्म आया और फीमेल तो एक्स क्रोमोसोम है ही है, तो बोलो यहाँ से वाई डेज W, तो ये फीमेल बना, बोलो ये वाइल्ड बना। ये वाई W, तो ये येलो एंड व्हाइट बना। बोलो यहाँ वाई डब्ल्यू डेज मीन्स ओनली वाई की इफेक्ट आई, W डेज से वो नहीं आई, तो बोलो यहाँ पे येलो बना। बोलो यहाँ वाई डेज W, तो वाई डेज की इफेक्ट वाई की नहीं आ सकी, W की आई, तो बोलो यहाँ पे व्हाइट आइज बनी। तो ये साइड का ही इन्होंने लिखा है, जो पेरेंट जैसा आया, वो कितना आया? तो 98.7%। पेरेंट से अलग रिकॉम्बिनेंट होके आया, बोलो वो रिकॉम्बिनेंट कितना आया? 1.3%। चलो देखो अब डिस्क्रिप्शन में, वंस अगेन मूव टू द पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 में बोलो जो लिंकेज का जो 5.3.3 का जो है उसका सेकंड पैराग्राफ, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वे लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड सो quickly that when the two genes in a dihybrid course were situated on the same chromosome, कौन सा है? XB और सेम क्रोमोसोम पे, यानी मेल में तो एक एक्स है तो उसके ऊपर ही दोनों, और फीमेल में 2 एक्स है तो एक एक्स के ऊपर भी दोनों और दूसरे ऊपर भी वही। The proportion of the parental gene combination were much higher than that of the non-parental type. इसको non-parental type कहेंगे, मिक्स हुआ वो ने, जो ऐसा ही मिला उसको नहीं बोलेंगे पेरेंटल। तो पेरेंटल टाइप non-parental से बहुत हाई रहा। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined that term as a linkage to डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स। बोलो दोनों एक ही क्रोमोसोम पे, उसको फिजिकल एसोसिएशन लिंकेज बोलेंगे। On a chromosome and the term recombination to the describe the generation of the non-parental on the
जीन कॉम्बिनेशन, बोलो न्यू जीन कॉम्बिनेशन वाई डेज डब्ल्यू डेज या वाई डेज डब्ल्यू मिलता है उसको ने क्या क्या आपने किया, रिकॉम्बिनेशन। वो कौन से प्रोसेस के लिए हुआ, क्रॉसिंग ओवर। Morgan and his group also found that even when the genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, so very low recombination। मीन टाइटली लिंक यानी क्या, एक ही क्रोमोसोम पे बट वो बहुत एक दूसरे के साथ में नियर है, उनका डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो बोलो यहाँ कॉम्बिनेशन कितना हुआ, ओनली 1.3%। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते उसमें समझ में आ जाएगा ये। हाँ बोलो, इसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, मिक्स ज्यादा आएगा। बिकॉज एक ही क्रोमोसोम पे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो हमने जो स्टडी करे उसके क्रोमोसोम पे वही एक ही हमने क्रोमोसोम पे, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट दे आर प्रेजेंट वेरी नियर टू ईच अदर। while other were loosely linked, बोलो लूजली लिंक यानी है तो एक ही क्रोमोसोम ज्यादा है। For the example, he found that the genes white and yellow were tightly linked। यहाँ white and yellow कैसा आएगा, tightly linked यानी बहुत डिस्टेंस कम है, बहुत ही कम है। Yellow and were tightly linked and so only 1.3% of the recombination, while white and miniature wing। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हाइट एंड मिनिएचर यानी देखो यहाँ पे क्रॉस बी लिखा हुआ है, व्हाइट मिनिएचर एंड वाइल्ड टाइप। क्या करना है, डब्ल्यू और एम कर देना है। डब्ल्यू मीन्स व्हाइट कलर, एम मीन्स मिनिएचर, उनकी जो विंग है वो छोटी हो गई, व्हाइट कलर मिनिएचर। एक्सपेरिमेंट यही के यही ड्रॉ करना है, वाई की जगह पे क्या आएगा, वाई की जगह पे डब्ल्यू और डब्ल्यू की जगह पे एम, व्हाइट मिनिएचर। बोलो यहां पे डब्ल्यू डेस एम डेक्स तो वाइल्ड, वही के वही आएगा, खाली वाई डब्ल्यू के बदले एम नहीं डब्ल्यू सॉरी एम, यस डब्ल्यू एन एम करना है। व्हाइट एंड मिनिएचर विंग शो 37.2% ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। बोलो उसके अंदर बोलो कितना रिकॉम्बिनेशन आया, 1.3 नहीं 37.2%। व्हाट डज दिस मीन कि वो जो व्हाइट कलर और विंग की साइज के जो जीन्स है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा पर चांसेस परसेंटेज ज्यादा है तो बोलो मिक्स टाइप रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा। खाली यहाँ पे क्या करना है, डब्ल्यू एम डेस, डब्ल्यू डेस एम डेस, डब्ल्यू एम, बाकी का सब वही, एक्स भी वैसा ही लेना है, वाई भी ऐसा ही लेना है, खाली उसके ऊपर के जीन्स चेंज करना है। बुक में वो बाजू में दूसरा भी लिखा हुआ है, उसको टैली करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है, और बुक में वो जो है वो जीन का डिस्टेंस भी ज्यादा दिया हुआ ही है। His student Alfred Stewart used this frequency of the recombination between genes pairs of the same chromosome and measure of the distance between genes and map their position their chromosome। ये हम कैसे क्रोमोसोम का वो हमने करना वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। These are extensively now used as a starting point in the sequencing of the whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing project described later। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो डिस्क्राइब करने के लिए यह आएगा। तो वो जो जीन का मैपिंग है वो इस पे से भी समझेंगे। इन शॉर्ट तुमको याद रखना है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट मॉर्गन का कहाँ पे अलग गया, तो एक तो उन्होंने ड्रोसोफिला सिलेक्ट करी, उन्होंने जो कैरेक्टर सिलेक्ट करे वो भी दो कैरेक्टर, two pairs of genes but they are present on the single chromosome। एक एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, दूसरा भी ऐसा ही है, खाली यहाँ पे सिंबल चेंज करनेंगे और परसेंटेज चेंज करना है। बोलो वाई डब्ल्यू फीमेल,
दिस जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स। यहाँ पे मेल में एक्स और वाई है, बट एक्स के ऊपर वही जो है वाई डेज डब्ल्यू डेज मीन्स उसको वाइल्ड। यहाँ से कोई भी एक बनेगा वाई डब्ल्यू यानी, और यहाँ से दो स्पम बनेंगे। एक्स वाला आएगा तो बोलो एक्स वाला यहाँ पे आया तो वाई डेज डब्ल्यू डेज लेकर आया, यहाँ से एक आया तो वाई डब्ल्यू लेके आया, तो यहाँ फीमेल जो बन गई वो वाइल्ड, और यहाँ से वाई क्रोमोसोम आया और यहाँ से वाई डब्ल्यू आया। तो बोलो यहाँ से वाई डब्ल्यू आया मीन्स वाई डेज डब्ल्यू डेज नहीं है, तो जो मेल बना वो येलो एंड वाइट बना। अब यहाँ से जो F1 जनरेशन मेल में से जो स्पर्म बने वो 2 टाइप्स ही बने, वाई डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम वाला। जो एक्स बने वो X4 टाइप बने, एक तो जो नॉर्मल वाई डब्ल्यू था वो, दूसरा वाई डेज डब्ल्यू डेज नॉर्मल था वो, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो से रिकॉम्बिनेट हुआ वो। फिर दोनों टाइप के स्पर्म से ये सब एक्स का फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट पेयर ऊपर की जो 1 2 3 4 मिलते वो मेल लेंगे, नीचे के 1 वो फीमेल लेंगे, इसके अंदर मेल हो के फीमेल हो, पेरेंट जैसे 98.7% और रिकॉम्बिनेंट 1.3%। जब यही दो कैरेक्टर यानी दूसरे चेंज करके जो एक्स पे है वो अपने लिया व्हाइट कलर एंड साइज ऑफ विंग वो अपने लिया, तो उसके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा था तो वाई के बदले व्हाइट कलर का डब्ल्यू आ जाएगा, साइज ऑफ विंग्स छोटी होती है तो मिनिएचर बोलेंगे तो डब्ल्यू के बदले एम हो जाएगा। तो वाई डब्ल्यू एम, यहाँ पे डब्ल्यू डेस एम डेस, ऐसे के ऐसे ही पूरा करेंगे। तो उसमें जो मिक्स आता है वो कितना आता है 37.2%। 37.2% तो बोलो उसका जो पेरेंटल टाइप आता है वो 100 में से 37.2 गया, तो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 99 हुआ। तो बोलो कितना आया 62%, 62.8%। तो यहाँ से इतना ने कंक्लूड कर सकते कि if in dihybrid cross we get the result according to Mendel 9331 और parental type 62.5% and other non-parental type, तो वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट जैसा हुआ, मीन सिलेक्टेड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। बट उससे थोड़ा भी कुछ भी चेंज हुआ तो क्या आएगा, सिलेक्टेड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, उसको बोलेंगे लिंकेज। और उसमें भी लिंकेज जो होता है उसमें नॉन पेरेंटल टाइप मिक्स किस पे डिपेंड करता है, कितना डिस्टेंस है। अगर जो डिस्टेंस कम होगा नॉन पेरेंटल कम आएगा, जो डिस्टेंस ज्यादा होगा नॉन पेरेंटल ज्यादा आएगा। और इसमें से जिन मैपिंग से पूरा हम समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।